General Hasnain, who joins us today for session 3. Lieutenant General Ata Hasnain, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM Bar, is a retired 3-star general of the Indian Army. His last assignment in service was as the military secretary of the Indian Army. Prior to that, he commanded the Army Corps in the Indian state of Jammu and Kashmir, amongst other appointments. He participated in Operation Pawan in Sri Lanka during 1988-90 and took part in counter-insurgency operations in Punjab in 1990-91. Graduated from St. Stephen's College, Delhi, General Hasnain is also an alumnus of the Asia Pacific Center for Security Studies, Hawaii, and the Royal College of Defence Studies, London, and has also completed a postgraduate degree of International Studies from King's College, University of London. Currently, General Hasnain is a prolific member of Track 2 Diplomacy with Pakistan, bringing his vast experience of Jammu and Kashmir to the meetings. He's a visiting fellow of the Vivekanand International Foundation, New Delhi, and senior fellow with Delhi Policy Group. He's a columnist for leading dailies and online magazines. Welcome, General Hasnain, to the Jaipur Dialogues. I request General Hasnain, as our first speaker today, to please come here, sir, and address the August gathering. Right after General Hasnain's speech, we will be taking questions directly. There are 2 volunteers we have who will be coming with the mics to you, not in a written format today, but an interactive one, and we'll be taking your questions. Please keep them brief and short. Thank you. आज तारिक फतेह साहब का जन्मदिन है, तो हम सभी लोग इनको तालियां बजा के बधाई। Firstly, let me compliment the city of Jaipur, the citizens of Jaipur, the media of Jaipur, which is also present in strength, I can see. And I would like to also congratulate Mr. Sanjay Chaturvedi and Sanjay Dixit, मैं चतुर्वेदी कह रहा हूँ, मैं संजय दीक्षित साहब, कल चतुर्वेदी साहब मुझे वहाँ मिले थे पुणे में, so I was confusing with him, Sanjay Dixit साहब, for having put together this amazing dialogue, this event. और लोग मुझसे पूछते हैं, what is Jaipur Dialogues? A lot of people were asking me on social media, what is Jaipur Dialogue? And my explanation for it, which you should also, I would recommend, strongly project. My explanation of Jaipur Dialogue was कि देखिए, the world is becoming a knowledge world, knowledge-based world. And Bharat में, what is happening is that Delhi is emerging as the intellectual capital of India. है तो capital, intellectual capital, सब think tank, सब कुछ activity दिल्ली में हो रही है. अब competing centers of intellect पूरे भारत में emerge कर रहे हैं. पूना में बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर. मुंबई में कुछ है, गेटवे हाउस है वहाँ पर, which is a very good think tank. बैंगलोर में है. इस तरह से मैं देखता हूँ कि जयपुर में हर साल मैं आता हूँ यहाँ पर for the India Foundation seminar on counter-terrorism, which is probably the finest seminar on counter-terrorism in India. That is a signature event of Jaipur city. इस तरह से Jaipur Dialogue जो है is bringing an intellectual event to Jaipur and increasing the stakes of Jaipur as a city to compete in becoming a knowledge center in India. इस तरह से आपको explain करना चाहिए and इसके अंदर events जो information जो है, which exchange of information जो है, is open-ended. It need not go into specific subjects. It's an open-ended kind of a thing. You've seen vast kind of things which are being discussed here. But having said that, my job is to actually bring the military into it. I'm the only military man in it. To bring the military into it. And when you are hearing from an army man, you will always want to know the state of security, etc. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, or bringing to your notice and your information, a concept of warfare which most people in India seem to be unaware of. भारत में एक notion है. I hope you're comfortable with Hindi, English both. Now I can speak like that. There's a notion in India that warfare security is a concern of the army.
आर्म्ड फोर्सेस। बॉर्डर सिक्योर है तो भारत सिक्योर है। ये बहुत पुराना नोशन है। नो लॉन्गर डज द वर्ल्ड लुक एट सिक्योरिटी इन दिस वे, इन द मैनर ऑफ कि बॉर्डर सिक्योर है तो दुनिया भारत सिक्योर है। बॉर्डर आपका बिल्कुल सिक्योर रहेगा, मगर अंदर अगर खोखलापन है तो यू विल नॉट बी सिक्योर। What has happened today is it's a world of comprehensive security. जब तक आपका बॉर्डर, आपका नेबरहुड, आपका एबिलिटी टू प्रोजेक्ट इंटरनेशनली, इंटरनल सिक्योरिटी जब तक आपकी तगड़ी ना हो, पावरफुल ना हो, जब तक आपकी सोसाइटी स्ट्रांग ना हो, जब तक आपकी इकोनॉमिक स्ट्रांग ना हो, तब तक आपकी सिक्योरिटी कहीं नहीं रही। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी आपने देखा था 6-8 महीने पहले मैं जयपुर में ही था उस दिन, जबकि हरियाणा के अंदर ऐसा जबरदस्त एजिटेशन चल रहा था और 4 दिन के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का माल जो था वो बर्बाद हुआ, जल गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सोशल स्टेबिलिटी नहीं थी। एक कंस्ट्रेंट था, रिजर्वेशन का आया, दिस दैट, व्हाटएवर इट इज, दीज आर कंस्ट्रेंट्स इन सोसाइटी। इसके मतलब देयर इज अ सोसाइटल टर्बुलेंस। इसका मतलब यू आर नॉट सिक्योर। जो आपने उन्नति की है, अगर आप 5 दिन में उसके 30,000 करोड़ रुपए जला देंगे, भूकंप हो जाएगा पूरा, तो फायदा क्या है इसका? यू आर नॉट सिक्योर। इस तरह से अगर आप देखें, एनर्जी देखें, आपकी 75% ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम द इज बीइंग इंपोर्टेड। यू हैव टू एंश्योर दैट इंपोर्ट रिमेन्स सिक्योर। कैसे सिक्योर करेंगे आप? जब तक आपकी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी, रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ नहीं बनी रहेगी, तब तक यू आर नॉट सिक्योर। क्योंकि कल अगर कुछ हो गया एकदम से, और समझिए आपकी ईरान ने कुछ पाबंदी लगा दी आपके तेल के ऊपर, या सऊदी अरेबिया ने लगा दी, या कुवैत ने लगा दी, सडनली यू विल फाइंड कि तेल का भाव जिसको आप आज 72-73 रुपए में खरीद रहे हैं पर लीटर, वो सडनली एकदम से बढ़कर 350 रुपए हो जाएगा। यू आर नॉट सिक्योर। सिक्योरिटी का मतलब ये, आजकल के नोशन में सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो आपके संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऑल द थिंग्स विच यू हैव मेंशन्ड आर योर नेशनल एस्पिरेशंस। यू वांट टू मेक इंडिया इनटू अ पावरफुल, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नेशन। हम अपने जनता के लिए, सबके लिए चाहते हैं उन्नति, बढ़ोतरी। और कोई भी चीज जो पाबंदी बन जाती है उस एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए, वो एक नेशनल थ्रेट बन जाती है। और उस थ्रेट को दूर करना फिर हम सब का काम होता है। आजकल मतलब यह है कहने का कि देयर इज, जो थ्रेट्स हैं भारत के ऊपर, दोज आर हाइब्रिड थ्रेट्स। नो लॉन्गर आर दे मिलिट्री थ्रेट्स अलोन। अब सिंपल चीज देखिए, 2 आपको वाक्य और बताता हूं मैं। जेंडर सिक्योरिटी। जेंडर से सिक्योरिटी से क्या मतलब? मगर आजकल की दुनिया में आप देखिए, टूरिज्म इज सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन विच इकोनॉमीज आर बेस्ड। भारत में टूरिज्म बहुत कम है अभी तक। हम चाहते हैं कि इसको बहुत बढ़ाएं आगे। स्कोप इतना ज्यादा है जयपुर जैसी जगह का, गोल्डन ट्रायंगल का। मगर अगर दिल्ली जैसा शहर, उसको इंटरनेशनली परसेप्शन में लोग कहेंगे द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कौन आएगा दिल्ली? एंड इफ पीपल डोंट कम टू दिल्ली, हु विल कम टू जयपुर? So you understand the constraints of Jaipur linked with Delhi. Perception की बात है। Perception is a very important aspect of national security today. How to project that positive image of your country so that people look around the world, look at your country in that manner. मगर जो आपका दुश्मन है, और आपके दुश्मन बहुत हैं, जो आपका दुश्मन है उसकी नजर आपके ऊपर इस तरीके से पड़ेगी कि आपको मिलिटरीली कमजोर नहीं करेगा वो। He will seek every avenue to weaken you. और मैं आपको उदाहरण इसका देता हूं। पाकिस्तान ने 1971 में जब लड़ाई हारी, 72 में हमने शिमला अग्रीमेंट अग्री करके और निगोशिएटिंग टेबल पे हमने लड़ाई हारी। 93,000 प्रिजनर्स हमने बेवजह दे दिए वापस, और कश्मीर का मसला भी नहीं हमने सॉर्ट आउट किया। 5 साल पाकिस्तान की आर्मी जो है बैरक में रही, और 5 साल के बाद जब जियाउल हक पावर में आया तो उसने एक मुद्दा रखा सामने। आई एम श्योर तारिक साहब विल एग्री विद मी
एक मुद्दा रखा, कैसे रेट्रीब्यूशन होगा, रिवेंज, बदला इंडियन आर्मी के साथ और हिंदुस्तान के साथ बदला कैसे लिया जाएगा। जिया ने एक जबरदस्त तजवीज बनाई। उस तजवीज में यह क्लियर था, नंबर एक, अगर पाकिस्तान को रेट्रीब्यूशन करना है, रिवेंज लेनी है, बदला लेना है, तो सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी कि उसको न्यूक्लियर हथियार अपनाना पड़ेगा। न्यूक्लियर हथियार अपनाने से क्या है कि जो कन्वेंशनल, हम दोनों के बीच में जो कन्वेंशनल एसिमेट्री है, जहां पर भारतीय फौज बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो मिसमैच है ये न्यूक्लियर हथियार पाने से ओवरकम हो जाएगी। उसने न्यूक्लियर हथियार पाया। दूसरी चीज, उन्होंने ये चाहा कि एक पावरफुल इस्लामिक नेशन के साथ दोस्ती की जाए जहां से पैसा, एनर्जी, सब कुछ आए। सऊदी अरेबिया के साथ वो किया। 2 साल के अंदर ईरान का रेवोल्यूशन आया और आपने देखा कि साथ साथ सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और पाकिस्तान एकदम से फ्रंटलाइन स्टेट बन गया दुनिया का। सऊदी अरेबिया का, अमेरिका का, हथियार बेशुमार, पैसा बेशुमार और साथ में उसके मुजाहिदीन बेशुमार और साथ में उसकी आइडियोलॉजी बेशुमार जो वहीं पैदा हुई पाकिस्तान के मुजाहिदीन कैंप्स में। और इसकी वजह से एक जबरदस्त एक्सपीरियंस मिली पाकिस्तान को अफगानिस्तान में लड़ने की, ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने की और ये नया तरीका लड़ाई का, हाइब्रिड वॉरफेयर को सीखने की। इसलिए जब 87, 88, 89 में सिचुएशन भारत में ऐसी आई तो 89 में पाकिस्तान ने अपनाया वो तरीका हाइब्रिड वॉरफेयर का और डिसाइड किया कि भारत के खिलाफ एक सिंपल तरीके से लड़ेगा और वो है हाइब्रिड। कोई जरूरत नहीं आमने सामने की फौजों की लड़ाई, आप गोलाबारी करें बेशक लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बस साथ में घुसपैठी करें। घुसपैठी अगर नहीं हो रही है, टेररिस्ट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो आप सड़कों के ऊपर पथराव करें, आइडियोलॉजी लाएं अंदर और दुनिया भर में आप भारत के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन करें। आपको हर तरीके से कमजोर दिखाएं, कमजोर बनाएं। आपके अंदर जो भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट की हो, रिलीजन की हो, एथनिसिटी की हो, हर फॉल्ट लाइन का फायदा उठाएं। कम्युनल राइट कराएं, कास्ट राइट कराएं। ये सब तरीके जिससे कि भारत के अंदरूनी हालत जो है वो हर वक्त डिस्टर्ब्ड रहे। ये तजवीज को कहते हैं वॉर बाय 1000 कट्स। वो लड़ाई जिसे 1000 कट्स के साथ धीरे धीरे ब्लीड किया जाए इंडिया को, और ये तब से लड़े जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो 87 और 87, 89 के बीच में जो स्थिति थी भारत में, मैं तो कहता हूं भगवान करे कि कभी दोबारा ऐसी स्थिति ना आए। 2016 में आपको मानसिक तौर पे इंटरनली यू शुड असेस एंड एनालाइज क्या हमारी हालत वही है क्या कि 87, 89 में जो थी। 87, 89 में जो हालत भारत में थी, 87, 89, 91 तक जो हालत भारत में थी, अगर पाकिस्तान नहीं अपनाता, ये तजवीजें नहीं बनाता, तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के कमांडर पागल होते, ISI का DG जो है वो पागल होता। मैं आपको दोहराता हूं कि क्या स्थिति थी। आप सब उस वक्त के हैं, मगर अगर आप ज्वाइन करें डॉट्स अपने दिमाग में तो आपको ये खुद ही महसूस हो जाएगा। लेट मी टेल यू दिस, इन 1987 politically, economically, socially, militarily, India was the weakest, 87 to 91. 87 में बोफोर्स का स्कैंडल आ गया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कमजोर पड़ गई थी। 440 सीट की मेजॉरिटी जो थी राजीव गांधी की गवर्नमेंट 89 में गिर गई थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। 2 गवर्नमेंट आपके पास आई, VP सिंह की और चंद्रशेखर की, मगर स्टेबिलिटी नहीं आई। 87 में आपने एक जबरदस्त मिलिट्री एक्सरसाइज की यहीं राजस्थान में, ब्रास टैक्स, उसको कन्वर्ट करके ऑपरेशन ट्राइडेंट बना। मैं जयपुर में ही था उस वक्त, और इट लेड टू प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान। उसके इमीडिएटली बाद हमने 4 डिवीजन अपने श्रीलंका भेज दिए और कमजोरी हो गई, मिलिटरीली वीक। 89 में बर्लिन वॉल गिर गई, दुनिया जो थी एकदम से अनस्टेबल हो गई।
और लड़ाई अफगानिस्तान में बंद हो गई। अफगानिस्तान से पूरे मुजाहिदीन जो थे वो भारत की तरफ आने लगे, कश्मीर की तरफ आने लगे। इकोनॉमिकली देखिए आप, सोशली देखिए, सोशली मंडल एजिटेशन की हाइट थी वो 89-90, और 1991 में इकोनॉमिकली भारत की क्या हालत थी। $1 बिलियन हमारा इकोनॉमिक रिजर्व्स, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो $1 बिलियन थे। 10 दिन का हम ट्रेड पे ऑफ जो थे वो कर सकते थे। आज हमारे पास 350 बिलियन है। तो ये स्थिति थी। और जब झांका पाकिस्तान ने उधर से हमारे तरफ और कहा ये इस स्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी, इसका फायदा उठाओ। जियाउल हक 1988 में मर चुका था और उसका रिप्लेसमेंट था मिर्जा इस्लाम बेग, आर्मी चीफ। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में थी। बेनजीर भुट्टो ने खुद असल में कोशिश की शुरुआत के, उसके अंदर ये इतनी करेज नहीं थी कि वो ये शुरुआत करे, मगर मिर्जा इस्लाम बेग ने, हामिद गुल ने, इन सब ने मिलकर, जो डीजी ISI था, पाकिस्तान को कंस्ट्रेन किया कि शुरू कर दो, और कश्मीर के अंदर शुरू हो गया। ना ही सिर्फ कश्मीर में, बाकी पूरे भारत में, यहां तक कि कोयम्बटूर में, बेंगलोर में, हर तरफ आप देखें, मुंबई में ब्लास्ट हुए। जो जितना क्रिमिनल टेररिस्ट नेक्सस था दाऊद इब्राहिम का, वो देखा आपने 1992-93 में हुआ। हर तरीके से पाकिस्तान ने हाइब्रिड तरीके इस्तेमाल करके और भारत को कमजोर करने की कोशिश की। और भारत में यह था कि हमारी स्ट्रेटेजिक कल्चर हमारा ऐसा है कि हमें महसूस करना हमारे लिए यह आसान नहीं था कि यह किस तरह की तजवीज हमारे साथ लड़ी जा रही है। हम समझते थे कि हर चीज जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, मगर ये हाइब्रिड के अंदर एक ही तरीका है, इसका प्रिंसिपल एक ही होता है। अगर आप कश्मीर में देखें, आज हाइब्रिड तरीके से आपको पैरालाइज किया हुआ है आपकी गवर्नेंस, हाइब्रिड तरीके से, आइडियोलॉजी के साथ, पैसे के साथ, फाइनेंशियल इंटरवेंशन, इंट्रूजन, जिसकी वजह से हमें आप कंस्ट्रेंट हो रहे हैं पूरे। ये सब हाइब्रिड तरीकों से किया गया है। इसको लड़ने का एक ही तरीका है, इट इज कॉल्ड द होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। पूरे गवर्नमेंट को लगना पड़ेगा इसके अंदर। भारत में अनफॉर्चुनेटली पुराने जमाने में ये जो महसूस नहीं करा हमने, हम समझते थे कि आर्मी, पुलिस, ये इंटेलिजेंस, ये सब मिलकर और इस तरीके की लड़ाई लड़ लेंगे। वो आज जारी नहीं है, वो बिलीफ जारी नहीं है आज। टुडे it is all a conditions of hybrid, and you are constrained by hybrid warfare, and therefore भारत की जनता को, the people of India have to realize and increase and enhance their strategic culture to support the government in whatever it is doing. जो आज ये आप देख रहे हैं जो demonetization है, this demonetization is what? It is a major attempt, forget the black money part of it, it is a major attempt to ensure that the terrorist नेक्सस, जो टेररिस्ट फाइनेंस नेक्सस है, जो ड्रग फाइनेंस नेक्सस है, इसको कंट्रोल करना। क्योंकि ISI का बजट आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ISI का बजट सिर्फ 20% या 30% गवर्नमेंट देती है, बाकी बजट जो है पूरा ड्रग इंडेक्स से आता है, ड्रग इन्फ्लुएंस से आता है, कराची से। इसके ऊपर पाबंदी लगा दे हम, तो आधा प्रॉब्लम जो है कश्मीर का, आधा प्रॉब्लम जो है हमारे टेररिस्ट प्रॉब्लम्स जो हमारे बाकी भारत में हैं, वो जो है हम दूर हो जाएंगे। मैं यहां पर रुक जाता हूं क्योंकि मैंने एक चीज चुनी है, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है, एंड आई विल होप दैट आई विल बी एबल टू आंसर 2 or 3 क्वेश्चंस व्हिच विल कम माय वे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। If there are any questions, I'll be very happy Audience to take questions, please, to General Hasnain. Yeah, we'll just send the mic over. मेरा नाम डॉक्टर संजय पारवा है, मैं कश्मीर से ही हूँ, ओह, मैं wonderful. कश्मीरी पंडित। आपने कश्मीर की बात की, इसलिए एक प्रश्न आपसे है। सर, आपने सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, जो सबके समझ में आती है, आपकी बात सब सही है, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक, जो सेपरेटिस्ट लीडर्स है, उनका 100 करोड़ खर्चा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें से 90% इंडियन गवर्नमेंट देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है, पहली बात। दूसरी बात, अपने इंडियन पार्लियामेंट और सारी असेंबलीज में आधे से ज़्यादा लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ बैठे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी आएगी कहाँ से?
The first part which you have said is about the separatists in Kashmir. There's no doubt. I mean, that is one element of the Kashmir problem that we are facing today. Why were we encouraging these separatists? Now, you see, अभी अगर आप थोड़ा सा कश्मीर की तरफ देखें, तो there is an old world approach and there's a new world approach. The old world approach towards resolving the Kashmir problem was always कि इसको how do we bottle it up? इसको resolve करने का कभी हमने solution नहीं देखा. We always looked at bottling it up. और हम इस vague notion में रहे कि separatists जो हैं, आज separatist हैं, शायद कल वो हमारे तरह भारतीय बन जाएंगे. इसका एक experiment हमने मिजोरम में किया था. From where we were very successful, where we had a militant leader becoming the chief minister of Mizoram. Right? And we were always in the hope that people in Kashmir are not of that violent orientation. The separatist leadership will ultimately come on board. इनको हम support करेंगे, पाकिस्तान को ये का हाथ ये छोड़ देंगे, and hopefully we'll get them into the political process, make them come into elections, and ultimately perhaps become the political rulers of Kashmir. वो नहीं होना है, मुझे भी समझ है इसकी. I think the realization has come today. And it is with that hope that this strategy was being played over all these years, and which is why 90% of, as you're saying, their budgeting and their expenditure was being looked after by the central government and 10% by the state government. But today, I think constraints on that have already been placed. It's emerging. It's not going to be an overnight change. Overnight change से turbulence बढ़ता है ज़्यादा. It is going to be a slow change, and it will happen over a period of time, right? I think we have burnt our fingers with the Hurriyat sufficiently. A lot of people still believe that the Hurriyat could be beneficial for India. I'm the last, I'm sure, like you. I do not believe in that at all. The second part is a more of a hypothetical thing in the sense that I can't give you an answer to that. That is a bigger problem for India. And with what Modi ji is doing today, what he's attempting to do, I think these are the kind of things which will happen in the future. If he stays on to rule for a long time, as I hope we all do that he will, then you will find that in the next couple of years, as the government gains more courage and more confidence on these issues, innovations come, better advice comes, things like the criminal content of the political community, black marketing, etc. These are the kind of things which have never been attempted in India earlier. I think will get attempted slowly. Only thing is we have to have patience. And I think Indians are patient people. We are displaying our patience under the current circumstances also, and very well displaying it. This kind of a situation in any other country in the world would have created a tremendous amount of turbulence. The Indian patience is still a very high level of patience, and I'm glad that we are doing it in support of our government, and I'm sure we are going to come out of this problem, and success in this is going to lead to manifold other initiatives which will come about subsequently. I hope I've answered your question. Yeah. But it's up to, ma'am, it's up to you to select from where you want the question to be answered. I will come to you. Okay, the question which has come to me, yeah, I'll take a combination of questions. सर नमस्कार, और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उसमें एक तो मेरा नाम भी आप ऐड कर दें. शुक्रिया. और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो ये भी कहा था कि आईएसआई जो है उसका जो फंडिंग जो पैसा आता है इलीगली वो लाहौर से आता है. आईएसआई का? आईएसआई का लाहौर, कराची. हाँ, कराची, सॉरी, कराची से. तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज है, उसको कैसे रोका जाए, जरा वो और बता दें. ओके. और हिंदी में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. मैम इसकी बात में बात. थैंक यू. और कुछ एनी अदर पर्सन? I'll take your question also. First of all, thank you for your services in Kashmir. Someone else asking? Hello. My second question is, sir, don't you think that army should move in counterinsurgency operations from the army, Rashtriya Rifles, to J&K police? I mean, No, आप दोबारा पूछिए. It's not very clear. Please get your thoughts clear if you're asking me a question. sir, I am saying, I mean, don't you think that army has done a commendable job, and now it's time to shift the counterinsurgency ops to police, the SOG? To policing? Yeah. In Kashmir? Yeah. Oh my God. Oh, great question. Okay. Thank you. Your question, sir. Sir, actually, General Jia, as you said, had a plan called TOPAC.
85. 85. And in that plan, he had mentioned about, devoted a quite an time on explaining the nature and character of Kashmiris. And in that he mentioned that Kashmiris cannot fight one-to-one, and they are very soft people. They can only rise and cry, and they cannot fight. We have to. So do you think, what I am want to say, that till now, the government has been very soft on them? When they uprising there, the government back down. So do you think a hard-handed approach would be beneficial in controlling the Kashmiri as per the TOPEC plan? Thank you. Thank you very much. I will answer all these questions put together in the next 5 minutes. First of all, TOPAC is an imagination. TOPAC was never on paper. You will never find a mention of TOPAC anywhere on paper. TOPAC is an intelligence appreciation of what Pakistan and what Zia's actual plan was. And it got projected into the world as Zia's plan. Very good thing, there's no doubt. But it was actually an imaginary thing. It was never a published thing, number one. Combining both these questions of yours, this one and the army moving out and policing taking over. This question came to me many times when I was in Kashmir also. And I'll try and combine these two questions put together. People came to me and said, AFSPA हटा देना चाहिए और आर्मी को हटा देना चाहिए. 13 दिसंबर 2013 में शेखर गुप्ता ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में. It was called, it was basically on getting the army to give the dividend of peace and victory back to the people by moving out of the hinterland of the valley and going to the line of control and leaving the valley in the hands of the police. Exactly what you're saying. मैंने उस शाम को शेखर गुप्ता से बात की. मैं कहा आप मेरा आर्टिकल छापेंगे? He said बिल्कुल बेशक. उस शाम को मैंने रात को बैठ कर पैशन के साथ लिखा. Sent it to him. Next 2 days later, 13 दिसंबर, अगर आप गूगल करें तो 13 दिसंबर 2013 को आपको ये आर्टिकल मिलेगा. It's called Victory in the Valley. Define it before implementing anything. क्योंकि आपको विक्ट्री की समझ ही नहीं है. विक्ट्री की समझ ही नहीं है. जीत क्या होती है, क्या देश जीतता कब है, फौज जीतती कब है, ये तो आपने इंटेलेक्चुअली कभी एग्जामिन ही नहीं किया है. अगर आप श्रीलंका को देखें तो लोग कहते हैं कि जीत हो गई है. लंका में कोई जीत नहीं हुई है, मैं आपको कह रहा हूं. यहां पर फोंसेका साहब जयपुर में क्राउन प्लाजा होटल में लास्ट ईयर मैंने यही सवाल उनसे पूछा था. मैं कहा कि आपकी जीत हुई है? उन्होंने कहा नहीं, कोई जीत नहीं हुई है. क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री को हम कभी भी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं कह सकते हैं. जब तक आखिरी तामिल अपने आप को श्रीलंकन नहीं समझता तब तक जीत नहीं है. अब उसी चीज को आप यहां देख लीजिए. जब तक आखिरी कश्मीरी कहता है कि जय हिंद, मैं भारत का नागरिक हूं, तो उस दिन जीत हो जाएगी आपकी. उस दिन जीत हो गई. और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 1994 का रेजोल्यूशन 22 फरवरी का क्लियरली बताता है, जॉइंट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन है, सब पार्टीज का एक साथ मिलकर, बीजेपी, कांग्रेस, सब मिलकर एक साथ रेजोल्यूशन है 1994 का, जो कहता है कि कश्मीर की जितनी टेरिटरी है, अक्साई चिन, गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, शख्सगम वैली, ये भारत का हिस्सा है. और भारत जो है प्रयास करेगा कि ये पूरी टेरिटरी वापस कश्मीर में आए और भारत के अंदर आए. हम सब, वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो द रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. हैविंग सेड दैट, इफ यू थिंक दैट यू हैव वन द बैटल इन द वैली, यू आर सडनली मिस्टेकन. अब तो कहीं नहीं. 2011 में 12 में जब कश्मीर के अंदर एक्साइटमेंट हो गया, जब मैंने वो हार्ट डॉक्ट्रिन का वहां इस्तेमाल किया, उसके बाद से आप सिचुएशन देखिए क्या हो गई अभी. अगर आप AFSPA हटा दें तो आर्मी को हटा दें, आप समझते हैं कि CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस कंट्रोल कर लेगी? आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर पाकिस्तान ने इस दफे क्या किया. 2010 में रूरल एरियाज के अंदर कभी टारगेटिंग नहीं की. इस साल रूरल एरियाज को टारगेट किया और जम्मू कश्मीर पुलिस को खास तौर पर टारगेट किया. 54 घर जला दिए पहले 4 दिन में कांस्टेबल्स के, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो एकदम से वो बैकफुट पे आ गई. और जब पुलिस बैकफुट पे आती है, आर्मी कुछ नहीं कर सकती. आर्मी का कोई कह दे कि हम अकेले काम करेंगे, मेरे साथ उसको बात कराओ, आर्मी हर दफे पुलिस के साथ काम करती है.
इसलिए वैली के अंदर कहना कि आज आर्मी को हटा दो, आर्मी अगले 10 साल नहीं हट सकती. 10 years more it will not go. You take it from me in authority. It cannot go. आर्मी का काम वहां पर टेररिस्ट मारना नहीं है, वो एक काम है. आर्मी का काम है वहां कॉम्प्रिहेंसिव जीत दिलाना भारत को, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री. और वो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री कैसे आएगी? साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के साथ, टेररिस्ट मारने के साथ, गवर्नेंस को सपोर्ट करने के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस को सपोर्ट करने के साथ, एग्रीकल्चर अच्छा हो, सेब वहां पर अच्छे हो. इसकी अगर बैकिंग आर्मी की होगी, पूरी आर्मी की प्रेजेंस की, तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो उभरेगी. एंड अल्टीमेटली इट इज द स्टेट which will bring victory to India. That's the way to look at it. The question of violence and overuse of violence. The more you use the danda, the more you will create terrorists. एक बात ये है. इसमें आपने हैदर देखी है पिक्चर हैदर? बहुत लोगों से मैं सवाल करता हूं कि आपको हैदर कैसी लगी, तो आर्मी के अंदर लोग मुझे कहते हैं बड़ी खराब मूवी है क्योंकि आर्मी को बड़े नेगेटिव लाइट से दिखाती है. मगर मैं लोगों को कहता हूं कि नहीं, ये बहुत बढ़िया मूवी है. इसको आपको इंटेलेक्चुअली समझाती है कि 1991, 92, 93 में आर्मी के पास और कोई जरिया ही नहीं था, हार्ड पावर इस्तेमाल करना था. तो हमारा कॉन्सेप्ट था 80% हार्ड पावर, 20% सॉफ्ट पावर. मगर लड़ाई जो है वो बड़ी डायनेमिक चीज होती है. वॉर इज अ वेरी डायनेमिक थिंग, इट मूव्स अलोंग विद टाइम. जो लोग 91 के दिमाग के साथ 2016 में लड़ाई लड़ रहे हैं वो बीत चुके हैं. उनके दिमाग जो है वो they fossilized. They cannot win a war in 2016 with the mindset of 1991. जो समझता है कि 1991 में जाकर AK-47 चलाकर और डंडे मार मार के जीत हासिल कर सकता है, वो गलत है. आज आपको कंबाइन करना पड़ेगा हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, दोनों चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा. और जितना आप हार्ड पावर में गलती करेंगे करने की, उतने ज्यादा आप एलियनेशन बढ़ाएंगे. और एलियनेशन बढ़ाएंगे तो कश्मीर आपसे दूर होता रहेगा. हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमारा मुद्दा क्या है कि पूरा जम्मू कश्मीर एक हो, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो. ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर जो हमारे हिस्से में अभी है, मगर पूरा जो महाराजा कश्मीर के कंट्रोल में था एक जमाने में, वो पूरी सरजमीन जो है वो भारत की हो. ये हमारा मुद्दा है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन टू आंसर योर एस्पेक्ट ऑफ ISI एंड द एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स. मैं आपको बताऊं कि पिछले 26-27 साल में हमने हर चीज के अंदर जो प्रयास किया है, हमने जीत पाई है. हमने टेररिस्ट मारे हैं, 10,000 टेररिस्ट से आज 200 टेररिस्ट रह गए हैं. हमने स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल किया है बहुत हद तक, बहुत वक्त टाइम्स के ऊपर. 8, 9, 10 में भी हमने काफी कंट्रोल पाया था इसके ऊपर. एक चीज या दो चीजें जिसके ऊपर हमने कभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं. नंबर 1 फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स और दूसरा है आइडियोलॉजी. दोनों के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं था ज्यादा. अब वो ज्ञान आ रहा है. अब वो ज्ञान आ रहा है जैसे जैसे स्ट्रेटेजिक कल्चर भारत का बढ़ रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट के अंदर एक्सपीरियंस बढ़ रही है. धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस की वजह से अब हम एक्शंस कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि ये फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स कंट्रोल में आ जाएंगे. पूरे पथराव जो है, पूरा पथराव वो फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स की वजह से होता है. पुलवामा के अंदर अकाउंट्स हैं, शुपिया के अंदर अकाउंट्स हैं, अकाउंट दिल्ली में है, ATM शुपिया में है, लोग पैसे वहां विड्रॉ कर रहे हैं. किसी को मालूम नहीं बेनामी अकाउंट कहां किसका है. तो इसकी जड़ आपको देखनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. जब पैसा रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली टेररिज्म रुक जाएगा. I think I have completed my. Oh, okay, I'll take a last question. Last question, please. General has Sir, a आप flight now. वैली के अंदर कोर कमांडर थे. वैली की पॉपुलेशन को अच्छी तरह समझते हैं, आपसे ज़्यादा कोई समझता नहीं होगा. वैली की पॉपुलेशन जो मैं समझता हूँ, there are 3 communities living there, and sorry, my question has a communal tone. Predominantly Muslims, then Pandits, and then Sikhs. Of course, the dominant community has been able to drive out the Pandits. They have not been able to drive out Sikhs. Any particular reason for this, sir? Why selective to Pandits and not selective to? Okay. Thank you very much. I think this is a very good question. Sir, I have a question for you.
Similar one? Yes, not similar one. Sir, I'm here. Okay, okay. Actually, मैं कहना चाह रहा था कि India just like a body, and it is infected by pest, like जिसे कहते हैं राजनीति. Pest में क्या आप सहमत हैं जैसे चाइना ने कुछ समय से अपने नेताओं को to be hanged till death against the corruption, and why we taken a step just like America against the Pakistan? Are you similar with me? Okay. हम ले सकते हैं ऐसा स्टेप? आपका सवाल मैं पहले जवाब कर देता हूं, then I'll come back to you. ओके सर. I think the biggest strength of India, भारत की सबसे बड़ी मजबूती है, is our democracy. It is our democracy. It's our constitution. Should I say with what respect, with what deep thought and intellect this constitution has been made for a nation which is supposed to be multi-ethnic, multicultural, multi-religious, multi-caste, multilingual. लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था भारत को 1947 में. दोबारा 1989 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो लोगों ने सब कहा कि भारत टूट जाएगा. It never happened. It's primarily because of your Constitution of India and the respect for democracy and the respect for multilateralism that you are surviving as a nation. Survival is a wrong word. You're going stronger by the day as a nation. Right? So, China के साथ compare करना, to say कि China ने corruption root out कर दिया by hanging people to the death, hanging politicians and arresting them, I don't think we as a nation deserve to even compare China with us. We are a different civilization. We are a different civilization completely, and we should take great inspiration from our civilization, number one. Number two, coming to your question, sir, first of all, the percentage of Sikhs is very small. It's only limited to 3 areas: Mirpur Bazaar in Anantnag, Tral in the area of near Avantipur, and the Baramulla sectors of North Kashmir. ये 3 जगहों पर है. I don't think historically there was any major standoff between the Sikh community and the Muslims or the Kashmiri Muslims. पंडितों के साथ ये problem था, historically it was there, which is what led to these constraints. You know, there was meandering things, although we've had some very good examples of integration of the Hindus and the Muslims in Kashmir. Badshah ke waqt, Sultan Zainul Abidin ke waqt, zabardast integration hua tha. That has been forgotten. Thereafter, historically, there was always a standoff. And there was a lot of ill treatment of Hindus. Later on the Dogra rule, a lot of ill treatment of Muslims. Unnecessarily, this standoff was there between the two communities, which is what led to this problem in 1989. It could have been controlled if you ask me. Problem 89-90 में ये था कि इंडियन आर्मी कहाँ थी, ये भी आपको समझना चाहिए. आधी 4 डिवीजन तो आपके श्रीलंका में बैठे थे, पंजाब में डिप्लॉयड थी, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड थी, वैली के अंदर आपका 1 डिवीजन था सिर्फ. एंड द टाइम व्हेन द पंडित्स गॉट थ्रोन आउट ऑफ द वैली, द आर्मी वाज नॉट देयर. जनवरी ऑफ 1990 जब आर्मी की जब शुरुआत हुई एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, द आर्मी वाज नोवेयर नियर. राष्ट्र राइफल्स अगर उस टाइम पर होती हमारे पास, डू यू थिंक दिस कुड हैव हैपेंड एवर? We would have blocked the Banihal, we would have stopped the Pandits going, we would have protected the Pandits, we would have, आज भी 1200 फैमिली तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा था, आई नो, इन विसू कैंप 1200 फैमिलीज को मैं प्रोटेक्ट कर रहा था. एंड लेट मी टेल यू, एज एन इंडियन मुस्लिम, मुझे सबसे बड़ी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थिंग विच आई फील, मुझे मालूम नहीं कितने लोग यहां पर अमरनाथ गए हैं, कितने लोग लॉर्ड शिवा के पास गए हैं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन? हाथ खड़ा करिए. कुछ लोग गए हैं. मैं एक मुसलमान हूं भारत का जो 8 दफे जाकर मैंने वहां सजदा किया है. ठीक है, 8 दफे मैंने, 3 दफे मैंने लीड की है. आई हैव लेड द यात्रा. सिर्फ भारत जैसा ऐसा देश हो सकता है जहां पर एक मुसलमान, भारत का मुसलमान जाकर और एक हिंदू यात्रा को जाकर लीड करके और सजदा करके वापस आए. ये सिर्फ भारत में हो सकता है. आपको, you should be elated that you belong to a nation such as this. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, General Ata Hassan. That was wonderful.